अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी डिस्कवर द ड्रीम लाइक ब्यूटी ऑफ पंचगांव इन कोलमाकंदा। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं इनकी बात पे पहले से यकीन करती हूँ क्योंकि उन्होंने ड्रीम लाइक बोला है ना, जी। तो वो चीज वैसी ही कोई बिल्कुल। वाकई में कोई हाँ। पैराडाइज हम देखने जा रहे हाँ, हैं। बहुत खूबसूरत बांग्लादेश जगह इतना होगी। खूबसूरत है, ऐसी ऐसी खूबसूरत जगह हमें देखने को मिलती हैं कि एक बार तो हम हैरान हो जाते बिल्कुल हैं ना। ऐसे ही है। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। चले इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हमें आपके रिएक्टिंग ने बस। चलो जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 एंड गो। কলমাকান্দা। কলমাকান্দা যেতে চাইলে আপনাকে প্রথমে চলে আসতে হবে মহাখালী বাস টার্মিনালে। কারণ মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে প্রতিদিন রাতে কলমাকান্দার উদ্দেশ্যে দুটি বাস ছেড়ে যায়। একটি ছাড়ে 9টা 30 মিনিটে, আরেকটি 10টা 30 মিনিটে। এই যাত্রায় আমরা যাচ্ছি রাত 10টা 30 মিনিটের সালমান পরিবহনের বাসে করে, যার টিকিট মূল্য জনপ্রতি 450 টাকা। রাত ঠিক 10টা 40 মিনিটে আমাদের বাস মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে যাত্রা শুরু করে কলমাকান্দার উদ্দেশ্যে। যাত্রাপথের দূরত্ব প্রায় 180 কিলোমিটার। যেতে সময় লাগবে আনুমানিক 5 থেকে 6 ঘন্টার মতো। রাত ঠিক 1টা 30 মিনিটে ময়মনসিংহের ধানসিঁড়ি হোটেলে 20 মিনিটের যাত্রা বিরতি দেয় আমাদের বাস। মনে রাখবেন, হাইওয়ে রেস্টুরেন্টগুলোতে খাবারের দাম তুলনামূলকভাবে একটু বেশি হয়ে থাকে, তাই খাবার অর্ডার করার আগে দাম সম্পর্কে অবশ্যই জেনে নেবেন। প্রায় 20 মিনিটের যাত্রা বিরতি শেষে আমাদের বাস আবারও যাত্রা শুরু করে কলমাকান্দার উদ্দেশ্যে। সবকিছু ঠিক থাকলে ইনশাল্লাহ সকাল 5টা নাগাদ পৌঁছে যাব কলমাকান্দা। अच्छा, रोड तो अच्छी दिखा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही एक सड़क है। हाँ, এখন সময় সকাল 5টা 10 মিনিট আর আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে এসেছি কলমাকান্দা বাজারে। बाजार में। हाँ। সকাল সকাল কলমাকান্দা পৌঁছে আমরা একটি টঙের দোকানে চায়ের আড্ডায় বসে পড়ি। এরপর ভোর হতেই আড্ডা শেষ করে আমরা কলমাকান্দা বাজার থেকে সারাদিনের জন্য 2টি বাইক রিজার্ভ করি। যে বাইক আমাদের পাঁচগাঁও, পাতলাবন, সাত শহীদের মাজার এবং মোমিনের টিলা ঘুরিয়ে দেখাবে। এর জন্য ভাড়া লাগবে একটি বাইকে 900 টাকা, আর একটি বাইকে মোট 2 জন বসা যায়, তার মানে জনপ্রতি 450 টাকা। বাইক রিজার্ভ করার পর বাকি রইল সকালের নাস্তার পর্ব, যা আমরা জনপ্রতি 50 টাকায় সেরে নিলাম কলমাকান্দা বাজার সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে। সকালের নাস্তার পর্ব সেরে আমরা এখন যাচ্ছি কলমাকান্দা ভ্রমণের প্রথম স্পট পাঁচগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। কলমাকান্দা বাজার থেকে পাঁচগাঁওয়ের দূরত্ব 12 কিলোমিটার। এই এলাকায় রয়েছে অনেকগুলো হাওর। दोनों साइडों पे पानी। আমাদের সবার পরিচিত টাঙ্গুয়ার হাওরের শুরুও কিন্তু এখান থেকে। তাই বর্ষাকালে এখানে রাস্তাগুলো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। और ये कितना यूनिक होता है ना, दोनों साइड पे नजर आ रहा है। ये रही
ब्रिज और पानी है, जहाँ पे फिशिंग भी होती है। फिशिंग हो रही है। हाँ, এই রাস্তা ধরে কিছু দূর সামনে যেতেই দেখা পেলাম মেঘে ঢাকা পাঁচগাঁওয়ের পাহাড়গুলি। কতই না সুন্দর আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি, তা এখানে এসে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারবেন। तो देखो बहुत ऊंचे तो नहीं, लेकिन पहाड़ कितने खूबसूरत है ना। और रास्ता देखो खराब है, ढका। लड़कों के मजे है ना, बाइकों पे राइड लेते हैं, चले जाते हैं, है ना। আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে এসেছি পাঁচগাঁও। এখানে এসেই দেখতে পেলাম একটি হোটেল, যেখানে আমাদের বাইকগুলো পার্কিং করলাম। আপনারা যারা মূলত বাইক নিয়ে আসবেন তারা এখানেই পার্কিং করতে পারবেন। এর জন্য আপনাকে 20 টাকা দিতে হবে। এছাড়া এখানে আপনারা ইন্ডিয়ান বিভিন্ন পণ্য जरूरत का পেয়ে सारा যাবেন सामान। এবং এখানে সেরে নিতে পারবেন দুপুরের খাবার। বাইক পার্কিং করার পর একটু হাঁটতে হাঁটতে সামনে গিয়ে দেখতে পেলাম সুন্দর একটি ঝিরিপথ। हाइकिंग करने जा रहे हैं। এর পাশেই দেখতে পেলাম গারো সম্প্রদায়ের লোকজন कितने से पानी इकट्ठा এখান करके থেকে পানি छान সংগ্রহ रहे हैं। করছে। এই ঝিরিপথ ধরে আরেকটু সামনে এগোতেই দেখতে পেলাম ছোট্ট একটি ঝর্ণা। ये झरना। তাহলে চলুন এই ঝিরিপথ ধরে সামনের দিকে যাওয়া যাক। जो पानी का बहार पड़ती है ना। ঝিরিপথ থেকে বের হয়ে আমরা এখন যাচ্ছি ঝিরিপথের পাশেই অবস্থিত পাঁচগাঁওয়ের বিখ্যাত বটগাছে। ट्री देखो। फैला हुआ है ना, हाँ, স্থানীয়দের মতে पुराना है। শত শত বছর পূর্বে ये जहाँ চাঁদ तक সওদাগরের आगे নৌকা ডুবেছিল এখানে। अल्लाह की कुदरत है ना। তাই পাহাড়টি দেখতে কিছুটা নৌআকৃতির, ये देखो। আর এ কারণেই এর নাম চন্দ্রডিঙ্গা। और वो देखो पत्थर कोई छोटे नहीं है जो नीचे पड़े हुए हैं, वो देखो उनके ऊपर भी पूरी वो ग्रीन और वो एलजी आई हुई है। পাঁচগাঁও ভ্রমণ শেষ করে আমরা এখন যাচ্ছি আমাদের কলমাকান্দা ভ্রমণের দ্বিতীয় গন্তব্য পাতলাবনে। पातला। মেঘালয় পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ছুটে চলেছি আমাদের গন্তব্যে। তাহলে চলুন উপভোগ করা যাক বাকিটা পথ। और मेघालय के पहाड़ ये उस तरफ है सारा। वहाँ से देखो तो वहाँ के लोग बांग्लादेश को बड़ा एडमायर करते हैं। यहाँ पे जितनी वीडियोस हम देखते हैं तो यहाँ पे ये बहुत पहाड़ों एडमायर में करते हैं। हाँ। আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে এসেছি পাতলাবনে। নান্দনিক সৌন্দর্যে ভরপুর নেত্রকোনার সীমানাবর্তী কলমাকান্দা উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের পাহাড় ঘেঁষা পাতলাবন। মেঘালয় পাহাড় থেকে বয়ে আসা নদী, সবুজ মাঠ, বালুর চর এবং সবুজ ধানক্ষেত মিলে এই পাতলাবন। সীমান্তে বাংলাদেশ অংশের কিছু কিছু টিলা এতে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। এখানে আসলে চোখ জুড়িয়ে যায়।
ইচ্ছে করে না ছেড়ে চলে যেতে। मेरा हाल है मछली पकड़ रहे हैं। পাতলাবন ভ্রমণ শেষ করে আমরা এখন যাচ্ছি সাত শহীদের মাজারের উদ্দেশ্যে। গণেশ্বরী নদী এবং মেঘালয় পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা ছুটে চলেছি সাত শহীদের মাজারের উদ্দেশ্যে। আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে এসেছি সাত শহীদের মাজারে। সাত শহীদের মাজার নেত্রকোনার সীমানাবর্তী উপজেলা কলমাকান্দার লেঙ্গুরায় বাংলাদেশ ও ভারতের নোম্যান জোনে অবস্থিত। প্রকাণ্ড মেহগুনি গাছের বাগানের ছায়ায় অবস্থিত এই মাজারটি। এখানে সমাধিত করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধে পাক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ হওয়া 7 মুক্তিযোদ্ধার। ये है এই মাজারের পাশ দিয়েই शहीदों বয়ে की গেছে कब्र। ভারতের মেঘালয় পাহাড় থেকে নেমে আসা গণেশ্বরী নদী। এখান থেকে দেখা মিলে ভারতের পাহাড়গুলোর। हुई हुई है हाँ। পাহাড় টিলা ও নদীর অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারবেন এখানে আসলে। हालांकि हमने कुछ वीडियोस में ऐसे भी देखा है कि बस नाले का फासला है और সাত fencing শহীদের नहीं है। মাজার आगे ভ্রমণ fencing শেষ করে होती है। हाँ আমরা এখন যাচ্ছি মোমিনের টিলায়। আলহামদুলিল্লাহ আমরা চলে এসেছি মোমিনের টিলায়। বাংলাদেশের সীমানায় থাকা টিলাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় টিলা হলো वो ट्रैक मोमिन ये টিলা। देखो सामने देखो। টিলার চূড়ায় যাবার हाँ, জন্য मैंने देखा है। জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত পাকা সিঁড়িও রয়েছে। তবে অ্যাডভেঞ্চার প্রিয়রা বেছে নিতে পারেন টিলার বুক চিরে উঠে যাওয়া পাথর মাটির পথটি। हाँ এই টিলায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় মেঘালয় পাহাড় আর মেঘের মিতালি। অপরূপ এক দৃশ্য এটি। अच्छी এছাড়াও खूबसूरत টিলার जगह है উপর ना। দাঁড়িয়ে নিচে তাকালে দেখতে পাবেন हाँ। সুন্দরী গণেশ্বরীর বিচিত্র রূপ। আমাদের কলমাকান্দা ভ্রমণের শেষ গন্তব্য মোমিনের টিলা ভ্রমণ শেষ করে আমরা আমাদের রিজার্ভ করা বাইকে করে বিকাল 5টায় চলে আসি কলমাকান্দা বাজারে। এরপর এখানে এসে এসএস পরিবহন এবং এসআর পরিবহনের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে জানতে পারি কলমাকান্দা বাজার থেকে সরাসরি ঢাকায় আসতে চাইলে অপেক্ষা করতে হবে রাত 9টা 30 মিনিটের বাসের জন্য। এক্ষেত্রে ভাড়া লাগবে জনপ্রতি 450 টাকা। যেহেতু অনেকটা সময় এখানে অপেক্ষা করতে হবে তাই আমরা দেরি না করে কলমাকান্দা বাজার থেকে একটি সিএনজি নিয়ে জনপ্রতি 130 টাকা ভাড়া দিয়ে চলে যাই নেত্রকোনা বাস স্ট্যান্ডে। এরপর নেত্রকোনা বাস স্ট্যান্ড থেকে ঢাকার মহাখালীগামী বাসে উঠে পড়ি। এক্ষেত্রে ভাড়া मतलब आप লেগেছিল पूरा एक दिन का জনপ্রতি ट्रिप 400 लगाओ টাকা। और आराम से आप रात को আমাদের वापस आ এবারে কলমাকান্দা ভ্রমণ গল্প ছিল এতটুকুই। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো জায়গায়। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। बहुत खूबसूरत जगह और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना वो ये कि जो ट्रेवल गाइड दे देते हैं ना हाँ जी। ये बड़ी कमाल की चीज है। बिल्कुल मतलब आप ऐसे देखो ही कि है। आप वहाँ के नेटिव हो या बाहर से आ रहे हो फॉरेनर्स हो तो आप आपको इस सिटी तरह के की अंदर से city- आपकी हाँ, वीडियो स्टार्ट होती है। हाँ आपको जी। इवन बस की टिकट कहाँ से लेनी टिकट का है और आपके बस साथ स्कैम नहीं हो सकता हाँ कोई जी, भी ना, उन्होंने ये चीज़ बता है। दिया ढाका के किसी भी कोने से आपने अगर यहाँ पे पहुंचना है पहुंचना है, तो हाँ। आपको इजीली टिकट मिल जाएगी टिकट मिल उसकी। जाएगी बिल्कुल। अच्छा वो सारी चीजें बड़ी बेहतरीन होती हैं और इसके साथ साथ ना आप देखो कि
कोई भी आप प्लान कर रहे होते हो ना, तो आप अपने बजट के हिसाब से उस चीज को हाँ जी, कैलकुलेट हाँ कर जी। लेते हैं। बिल्कुल। खाना तो डेफिनेटली हाईवे पे जब भी आप खाना खाते हो Expensive होता एक्सपेंसिव है, होता है, लेकिन फिर भी लेकिन ये ट्रिप मुझे बजट फ्रेंडली लगता है। हाँ बिल्कुल, है ये लगता है। अच्छा, फिर आप ये देखो जिस तरह की टाइमिंग इन्होंने चूज की कि रात में ट्रेवल किया और सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुंचे, और हाँ देखो जी। कि आगे जो जगह देखी इतनी इतनी खूबसूरत, खूबसूरत, आपने इतनी वाटर lush बॉडीज को green, देखा, हाँ। हमने प्लेन लैंड को भी देखा, हमने जी। जो नीचे था, और हमने हिली एरिया को भी देखा। एक तरफ जो है वो हिल्स नजर आ रही, दूसरी तरफ फील्ड्स है हाँ। टोटली। अच्छा, और उनके दरमियान में जो पानी चल रहा है, और दरिया बह अच्छा, रहा है, मेरा बहुत मेरा बहुत फेवरेट खूबसूरत मोमेंट जो है। था ना वो रिवर वाला ही था, हाँ क्योंकि जी। पत्थर जो थे उन पे भी एलजी थी, वो हाँ, ग्रीन कलर के हाँ, दिख रहे थे, हाँ, और पानी का बिल्कुल। रंग भी बड़ा अच्छा, खूबसूरत था। आप ये मुझे चीज वो देखिए। पतला बन वाली साइड बहुत ज्यादा खूबसूरत लग हाँ रही थी। जी। उसमें जो दरख्त दिखाए गए हैं ना, बहुत। इतना कितना पुराना दरख्त वो हम जो लोगों ने सबसे देखा है। बड़ा दरख्त है ना, वो बहुत ज्यादा हाँ, खूबसूरत लग रहा ज़ारा था। वो सारे बड़े बहुत बड़े थे। मामा, बहुत आप ये खूबसूरत चीज थे। देखिए, मेघालय को कहते हैं बादलों का घर। हाँ। आपको यहाँ पर भी उसी तरह से जो है ना वो हैवी क्लाउड वो आपको देखो ना, नजर आया एरिया है। तो सेम है ना, हाँ जी। एरिया तो वही वाला है। हाँ, अच्छा, हम लोगों ने जब भी वीडियोस देखी है ना, जैसे इंडिया की देख ली या यहाँ की देखी, तो हम हमेशा यहाँ पे देखते हैं कि भाई वहाँ मेघालय को बहुत ज्यादा एडमायर किया जा रहा होता है, लेकिन वहां से जब देखते हैं तो वो लोग बांग्लादेश को बहुत बहुत एडमायर admire करते करते हैं हैं। ना। वो चीजें सारी बड़ी खूबसूरत है, और बात उन्होंने सही की कि भाई अगर इस जगह को बांग्लादेश की जन्नत कहा जा रहा है, तो वो चीज आपको उस तरह से नजर नजर बिल्कुल भी भी बिल्कुल आती ऐसे। है। और एक और चीज जो मुझे इस ट्रिप की बड़ी अच्छी लगी, जी। वो बाइक राइड की लगी, कि आप देखो कहीं से भी आपको रेंटा बाइक मिल जाती है, आप कहीं भी मिल इजीली जाती है, ट्रैवल कर बिल्कुल सकते ये हैं। ऐसा बात ही है। बहुत कमाल है, और मैं ज़ारा के साथ ये ना वीडियो के दौरान भी बात कर रही थी कि लड़कों की मौज है, और ये चीज़ मुझे बांग्लादेश की बहुत अच्छी लगती है कि जिस भी इलाके में जाते हैं ना, हाँ वहाँ जी। पे आगे बाइक राइड अवेलेबल ride- होती है, आप और देखिए, बड़ी इकोनॉमिकल पड़ती आप देखें ना, इकोनॉमिकल कुछ इस है, तरह के रास्ते होते हैं कि जहाँ पे इवन सीएनजी भी नहीं जा नहीं सकते, जा जा पाता। वहाँ पे ये बाइक या स्कूटी क्लोजेस्ट आपके आप काम चले जाते हैं अपनी हाँ। और लोकेशन उसमें के। ना सबसे अच्छी बात पता है क्या हाँ होती है जी। कि आपको एक फ्री का गाइड कह लो साथ बिल्कुल। मिल जाता है, वो आपको सही जगह और आप दिखाते देखिए, हैं। आप सीनरी ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं हाँ, बाइक के ऊपर, हाँ, जहाँ दिल बिल्कुल, जाए आप वहाँ बिल्कुल, पे रोक बिल्कुल ले और इसी कर तरह ले से है। enjoy। और दूसरा फिर एक चीज जो मैं देखती हूँ वो ये कि वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड भी इस चीज के ऊपर डिपेंड डिपेंड करता करता है, है, बिल्कुल। करता है। और वो सारी चीजें हैं। तो आप देखें ना, वहाँ पे आपको ये रेंटा बाइक्स मिल ही इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी ऑफर की हुई है वहाँ पे, हुई है, वरना exactly। हम भी तो यहाँ पे जाते हैं, हमें यहाँ से कोई वैसे ट्रिप प्लान करे बाइक पे तो और बात है, हाँ। वरना ऊपर हिली एरियाज में जाके हमें वहाँ पे जीप्स रेंटा वगैरह बाइक मिल जीप्स जाती बहुत हैं, अच्छी हाँ मिल जी। जाती हैं, गाड़ियां मिल जाती मिल हैं, जाती लेकिन हैं। बाइक वाला सीन यहाँ पे अभी तक कोई इस तरह का नहीं होता। हाँ, जो लोग अपनी बाइक्स पे जाते हैं वो तो फिर और वो बड़े ही बड़े enjoy जबरदस्त करते टूर्स हैं। होते हाँ, हैं बहुत उनके। अच्छी वीडियो थी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बाकी आप इस जगह से अगर हमें देख रहे हैं और कुछ और इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।